Today we are going to discuss the last topic of Unit 2, Indian Contract Act 1872 from its last chapter as a general contract, and today we will complete general contracts. Let us see what is the name of the chapter, what is the last chapter all about. So the last chapter deals with remedies for breach of. Let us see the question, how the question is asked from this particular chapter. Explain the rules of damages on the basis of Hadley versus Puxendel. So there is a one landmark case on which the rules of damages were framed, and so we are supposed to first discuss this case, and based on this case, what are the rules that were framed. We will discuss that question in detail, or in different way if the question can be asked is explain different types of damages for the breach of. So let's have the introduction first. So friends, normally first we are supposed to understand what exactly is breach. This question, first you are supposed to understand what exactly is breach of contract. So let us try to understand first what is breach of contract, how the contract gets terminated, how it is ended. This is one of the method of termination of contract called breach of contract. So let us try to understand first the basic concept. Parties to a lawful contract are expected to perform their respective promises. That we already have understood many times. What happens if the party refuses or fail to perform the agreed on? There is a responsibility of the parties to perform under the contract as what they have promised to each other. That expectation is there that parties will perform, and it is a lawful expectation. They are supposed to fulfill their obligations. But what happens if the parties refuse or fails to perform the agreed promises or obligations? If one of the party refuses to perform or he fails, there is a failure to perform under the contract, then what will happen, sir? Such a failure or refusal results into what, sir? It is a breach of. So when one of the party to the contract refuses to carry out his part of the promise, he is said to have breached the contract. दो में से एक बंदा परफॉर्म नहीं करता है या परफॉर्म करने से मना कर दे, इनकार कर दे, तो सर वहाँ क्या हो जाएगा सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो पक्षकारों ने वादा किया, दोनों की परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दो में से एक अगर इनकार कर दे, रिफ्यूज कर दे टू परफॉर्म, देन व्हाट सर? देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी. Under such cases, what will happen, sir? Under such cases, the aggrieved party can claim damages for the breach of. तो वहाँ पे सर जो जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके साथ ये घटना घटी है, उसके पास ऑप्शन है. ऑप्शन क्या है सर? He can treat the contract as void contract and he can file a case against the another who had made the breach. So even compensations can be claimed, damages can be claimed when the breach of contract is. So this is one of the option to claim damages as a compensation. इससे नुकसान हुआ है, अगर वो साबित कर सकता है उसे नुकसान हुआ है, तो वो अदालत जा सकता है और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है. इसी के बेसिस पे रूल्स ऑफ डैमेजेस है. डैमेजेस किस स्वरूप के हो सकते हैं ये डिसाइड किया जाता है इस केस के बेसिस पे. हैडली वर्सेस बक्सेंडल 1854 ये इसका लैंडमार्क. इसी के बेसिस पे से ये पॉइंट बना है, रूल्स बने हैं, और वो रूल्स कैसे बने, क्या घटना घटी थी, इस केस में हुआ क्या था, पहले वो सब. अगर क्वेश्चन के अंदर हेडली वर्सेस बैक्सेंडल का नाम डाला गया है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, इस स्वरूप में पूछा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये केस का उल्लेख करें अपने आंसर. आप ये केस की डिटेल्स दें और सही तरीके से पूरा कंटेंट कवर करने की कोशिश करें. एच
देखते हैं केस की डिटेल क्या है। एच मिल वाज स्टॉप्ड। एच कौन है सर? हेडली। हेडलीज मिल वाज स्टॉप्ड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ अ शाफ्ट टू बी। बी कौन है सर? बक्सन। अब जो बी है सर वो कॉमन कर। एच मिल वाज स्टॉप्ड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ अ शाफ्ट टू बी, a common carrier to be taken to a manufacturer to copy it and make a new। तो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है दो जन के बीच में। एक मिल का मालिक है हेडली और दूसरा है बक्सेंडल। बक्सेंडल यूँ समझ लीजिए मिडल मैन है। मिल का मालिक है, उसके एक मशीनरी का स्पेयर पार्ट टूट गया, यूँ समझ लीजिए शाफ्ट कहते हैं जिसे, और ये टूट गया है तो वो बी को देता है। और बी बी को देने के बाद बी क्या करता है सर? थर्ड पार्टी से यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास ले जाता है और कहता है कॉपी एंड मेक अ न्यू, एक नया बना है। तो वो जो स्पेयर पार्ट टूट गया है उसकी कॉपी करके नया बनाने की बात। आगे बढ़ते हैं। एच हैड नॉट मेड इट नोन टू बी, अंडरलाइन किया है यानी इंपॉर्टेंट बात। एच हैड नॉट मेड इट नोन टू बी दैट डिले वुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ कोई जानकारी नहीं दी गई। मालिक ने, बिल के मालिक ने, हेडली ने बक्स हैंडल से नहीं कहा कि जितनी ज़्यादा देरी होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। बिल के मालिक ने कॉमन कैरियर को बताया, हेडली ने बक्स हैंडल को ये बात बताई। By some neglect on the part of B, the delivery of the shaft was delayed in transit beyond a reasonable time। लापरवाही थी बी की भी नेग्लिजेंसी थी और ज़्यादा समय लग गया, डिले हो गया। जो ट्रांजिट था, जो समय पे पहुंचना चाहिए था सामने वाले के पास यानी कि थर्ड पार्टी के पास, फिर वहां से जो रेडियो के फिर से रिटर्न आना चाहिए हेडली के पास, उसमें समय ज़्यादा लग गया। मान लीजिए 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था तो 3 महीने, थोड़ा ज़्यादा समय। इस सिचुएशन में फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? एच एच ने केस किया। एच हेडली ने केस किया, फाइल्ड a suit for damages। he filed a case for damages not only for the delay in the delivery of the shaft but also for the loss of profits suffered by him for no work done in the factory due to delay। जनाब ने दो बातें रखी, एक देरी हुई, शाफ्ट मिलने में देरी हुई, उसके लिए उसने डैमेजेस क्लेम, और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, नफे में नुकसान हुआ, प्रॉफिट में लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि जो समय समय सर मुझे मिलनी चाहिए थी, स्पेयर पार्ट मिलना चाहिए था, दो बात। एक एक तरीके से जनरल लॉस की बात हो रही है और दूसरा जो है ये स्पेशल लॉस की बात। हेल्ड दैट एच वाज एंटाइटल, जजमेंट देखते हैं। एच वाज एंटाइटल ओनली फॉर जनरल डैमेजेस वी कैन से, and B was not liable for loss of profits during the period of delay, as the circumstances communicated to B did not show that a delay in the delivery of shaft would result into loss of profits to them। एच क्या रिकवर कर पाया सर? एच सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवर कर पाया। ऑर्डिनरी डैमेजेस में क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं फैक्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कुछ चीज़ें फिक्स तो होगी ना। मान लीजिए फैक्ट्री रेंट की है तो रेंट रेंट तो जाएगा ही जाएगा। प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे क्या लेना, रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ऑर्डिनरी डैमेजेस थे वो मिले हेडली एज ए फिक्स एक्सपेंसेस। लेकिन जो स्पेशल लॉस यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो क्लेम नहीं कर, मीन्स वो उसे नहीं। ही वॉज नॉट लायबल फॉर दिस लॉसेस। एक्सटेंडल को ये कॉम्पेंसेशन के तौर पे नहीं दे। क्यों? कम्युनिकेशन नहीं किया था ना सर। इस रीजन रीजन क्या है? द सर्कमस्टांसेस वेर नॉट कम्युनिकेटेड विद बी। बी को ये इन्फॉर्म नहीं किया गया था। हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे केस में, एच हैड नॉट मेड इट नोन टू बी। बी को बताया नहीं गया था कि इस शाफ्ट की वजह से प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है, इसको जल्द से जल्द रिपेयर करके आप मुझे बना के दीजिए, नई कॉपी बना के दीजिए। ऐसा कम्युनिकेशन, इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं, अर्जेंट है, जल्दी करें, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कम्युनिकेशन। अगर ऐसा कम्युनिकेशन हुआ होता तो स्पेशल लॉस भी
स्पेशल डैमेजेस भी रिकवर, यानी ऑर्डिनरी डैमेजेस प्लस स्पेशल डैमेजेस वुड हैव रिकवर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसी केस के बेसिस पे आगे अब हम चर्चा करेंगे सर रूल्स ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी केस के बेसिस पे फिर रूल्स रेडी किए गए हैं। तो पहला रूल क्या आता है, पहला टाइप ऑफ डैमेज क्या है, टाइप्स पूछ ले, रूल्स पूछ ले सर, वन एंड सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं है, इन सब सिमिलर पैटर्न के ही। तो पहला रूल क्या है डैमेजेस का, किस प्रकार का डैमेज हो सकता है सर, ऑर्डिनरी डैमेज और वी कैन से जनरल डैमेज। टेक्निकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, सच डैमेजेस आर अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। इस तरीके से भी आप हेडिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि सच डैमेजेस विच अराइजेस नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, ऐसा टाइटल देना है तो भी दे सकते हैं। तो a party who suffers by breach of a contract is entitled to only such damages which arises naturally in the usual course of business due to breach. Now, this means that the damages must be nearest cause of the breach of such damages which are of nearest cause for the breach of contract are called ordinary damage. जो बहुत ही नजदीक वाला रीजन हो, कॉज हो, नियरेस्ट कॉज, नजदीक वाला, उसे हम ऑर्डिनरी डैमेजेस मानते हैं। और ये हमारे बिजनेस के रेगुलर ऑर्डर में होता रहता है, ऐसा चलता रहता है। इट अराइजेस नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ, ये आम बात है, ऐसे नुकसान होते रहते हैं, छोटी मोटी बात होता रहता है, ऐसा माना जाए, इसे जनरल माना जाएगा। इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। तो द मेजर ऑफ, अब इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसके मेजरमेंट की बातें हो रही है। द मेजर ऑफ ऑर्डिनरी डैमेजेस इज बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑन द डेट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आता है वो उसकी अमाउंट बन जाएगी, वैल्यूएशन। एग्जांपल लेते हैं, X, sorry, Z contracts to deliver 1200 bags of rice. Mr. Z contracts to deliver 1200 bags of rice at rupees 200 per bag on a future date. Z जो है रेडी हो रहा है, 1200 बैग की डिलीवरी देने की बात हो रही है राइस की, और 200 रुपये प्राइस फिक्स हुई है एज अ कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में डिलीवरी दे। ऑन द ड्यू डेट ही रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, जिस दिन डिलीवरी देनी है उस दिन बंदे ने मना कर दिया, मीन्स ब्रीच कर दिया, he refused to deliver. The market price on that day has increased to rupees 250 per bag. अब जो चीज हमने 200 में खरीदनी थी मिस्टर जेड से, अब वो 250 की हो गई। जिस दिन ब्रीच किया उस दिन उसका रेट बढ़ गया, उस दिन से मान लीजिए रेट बढ़ गया 250 रुपये। अब क्या, बंदे ने तो 200 में देना था, दे नहीं रहा, अब हमने मार्केट से 250 में खरीदना पड़ेगा, तो उसकी मार्केट प्राइस 250 की हो गई है। मेजरमेंट कैसे होगा सर लॉस का, सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी सर,